مغربی معاشرے کے انتہائی کمزور اور غلیظ پہلو کو اجاگر کرتی تحریر دوہری خوشی بائے سمر عباس آواز رحمان خان۔ میں نے ایسے کئی قصے سن رکھے ہیں جن میں تجہیز و تکفین کا موقع پر گولیاں چلنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ اسکوائر ہوٹل میں پیش آیا جہاں ایک ہی خاندان کے دو گروپوں کے درمیان میت کی تدفین کے موقع پر گولیاں چلیں، لیکن میرے علم میں یہ پہلا واقعہ تھا جس میں متاثرہ شخص پہلے ہی مر چکا تھا، بلکہ اس کی میت انتہائی نفیس تابوت میں رکھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں تابوت کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیتا، اسے زمین پر رکھا جا چکا تھا، لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ گولی پیتل سے بنے ہوئے نقش و نگار اور لوہے کے صندوق کا کچھ بگاڑ سکی ہوگی۔ مرنے والا جیمز گارلینڈ مختلف اوقات میں پوسٹ ماسٹر، میئر اور ریاستی مجلس قانون ساز کا رکن رہ چکا تھا۔ کئی سالوں سے وہ ہر روز صبح قصبے میں شیو بنوانے اور اٹلانٹا جرنل کی کاپی خریدنے آیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور مختلف معاملات میں اس کی رائے جاننا چاہتے، لیکن گرتی ہوئی صحت کے پیش نظر وہ چند ماہ سے اپنے گھر کے پورچ تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا پورچ بہت سے گھروں سے بھی بڑا ہے۔ وہ اپنی ذاتی کاروبار اور زندگی کے معاملات میں صاف، شفاف اور فیاض سمجھا جاتا تھا۔ وہ راستہ چلتے ہوئے ہر بچے کو ٹافی اور بادام دیا کرتا، ان میں سیاہ فام اور سفید فام سبھی بچے شامل تھے۔ اسے دوسرے لوگوں کو بھی فیاضی پر آمادہ کرنے کا گر آتا تھا۔ میں خود بھی اس سے مستفید ہو چکا تھا۔ جب میں نے ایک ڈوبتے ہوئے لڑکے کو ندی سے نکالا تھا، اس کا باپ ایک ممتاز بینکر تھا۔ اس نے مجھے انعام دینا چاہا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تب ہوم نے مداخلت کی اور مجھے سمجھایا کہ مجھ جیسے ابھرتے ہوئے ڈپٹی شیرف کے لیے یہ ٹرک کتنا کارآمد ہوگا اور اس سے پوری کاؤنٹی فائدہ اٹھائے گی۔ شیرف کٹ کو جب معلوم ہوا تو وہ مجھ سے حسد کرنے لگا اور اس نے شوشہ چھوڑا کہ یہ ٹرک کاؤنٹی کی ملکیت ہونا چاہیے، لیکن ہوم نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ دوسرے لوگوں کی طرح شیرف بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ جیمز گارلینڈ ہوم سے مخالفت مول لینے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے دوسری بار اس سے ملنے کا اتفاق اس وقت ہوا جب اس نے نشے میں مدہوش ایک شخص سے نمٹنے کے لیے مجھے بیسلے ہوٹل بلایا۔ وہ شخص اپنی بیوی کو بری طرح زدوکوب کر رہا تھا۔ ہوم اتنا برہم تھا کہ اس نے مجھے اس شخص کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے کا حکم دیا، لیکن فوراً ہی قانون ہاتھ میں لینے کی تجویز پر میں نے معذرت کر لی۔ اب بیسلے ہوٹل بھی ہوم خاندان کی ملکیت ہے۔ جیمز گارلینڈ ہوم نے یہ ہوٹل خاص طور پر اپنی بہن کے لیے خریدا تھا جس کا شوہر جوئے میں ہار گیا تھا۔ مسز بیسلے وہ ہوٹل فروخت کرنا چاہ رہی تھی اور ہوم نے ایک معقول قیمت دے کر اسے خرید لیا تھا۔ اس طرح ہوم کی بہن کو رہائش اور خوراک کے ساتھ ایک مفید کام بھی ہاتھ آ گیا۔ اس نے اپنے شوہر کے نقصان کو ذہن میں رکھتے ہوئے حساب کتاب پر زیادہ توجہ دی، کیونکہ تمام تجارتی گماشتے اور ریلوے کے افسران اس قصبے سے گزرتے تھے۔ اسی لیے مجھے امید تھی کہ اس کا ہوٹل ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ جیمز گارلینڈ ہوم کی عمر 90 برس سے تجاوز کر چکی تھی، اس لیے اس کی موت کو دردناک نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم اس کے جنازے میں سوگواروں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ غمزدہ سیاہ فام لوگوں کے ساتھ چند سفید پام بھی کنٹری روڈ پر سب بستہ کڑے تابوت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ مرنے والے کو آخری بار خراج عقیدت پیش کر سکیں۔ اس روز موسم بھی خوشگوار تھا، ہلکی بارش ہونے سے گرد بیٹھ چکی تھی۔ میری ڈیوٹی ٹچ گراؤنڈ اور قبرستان کو جانے والی سڑک پر تھی تاکہ وہاں آنے والی گاڑیوں کے لیے راستہ بنا سکوں۔ مجھے مزور گھوڑوں اور کار سے باہر نکلتی خواتین کی جالروں کے کسی بھی خطرناک ملاپ کو روکنا تھا۔ میں کاؤنٹی کا واحد ڈپٹی تھا جس کی خدمات حاصل کی گئی تھی، حالانکہ شیرف کو بھی اس موقع پر موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بدن پر پھوڑے پنسیاں نکل آئی تھیں اور دانت میں بھی تکلیف تھی۔ میں ایک چھوٹی نوٹ بک میں اس کی غیر حاضریوں کا ریکارڈ محفوظ کر رہا تھا۔ وہ اگلے سال ہونے والے انتخابات میں بھی گزشتہ 20 برسوں کی طرح بلا مقابلہ منتخب ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ میرے ذہن میں دوسرے خیالات تھے۔ قانون نافذ کرنے والے افسر کی حیثیت سے یہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ نکمے پن کی بنیاد پر اس کے خلاف کوئی مہم چلا سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کی جڑوں میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ لوگ اپنے گندے کپڑے کہاں ٹھکانے لگاتے ہیں۔ میرا منصوبہ تھا کہ اس کی خراب صحت کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف مہم چلائی جائے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی جیمز گارلینڈ ہوم کے جنازے پر بھی گولی چلا سکتا ہے۔ دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ کھودی گئی قبر کے پاس کھڑے ہوئے لوگ اپنی جگہ سے اچھل پڑے تھے۔ جنگل کی سمت سے آنے والی گولی
गोली ताबूत को टकराने से पहले ही एक जनाजा बरदार के हेड पर लगी। खुशकिस्मती से उस वक्त जनाजा एक ट्रॉली पर रखा हुआ था और उसे जमीन पर उतारने का इंतजार किया जा रहा था। सब लोग चंद कदम पीछे हट चुके थे और पादरी के इशारे का इंतजार कर रहे थे कि वो कब जनाजा बरदारों को ताबूत उतारने के लिए कहता है। मेरा पहला ख्याल था कि किसी बेवकूफ शिकारी या नौजवान तालिब इल्म ने हादसाती तौर पर गोली चला दी होगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये आवाज किसी राइफल या शॉटगन की नहीं बल्कि रिवॉल्वर की थी। फिर मेरा ध्यान उस इस्म की जानिब हो गया जहाँ से गोली चलाई गई थी। मैंने गर्दन नीची करके घटना के बल उस जानिब बढ़ना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाया, मैं डिप्टी शेरफ स्टू बोल रहा हूँ, अपने हथियार नीचे रखो। मेरे जिस्म में सरलहर दौड़ गई जब मैंने एक और गोली चलने की आवाज सुनी। ये आवाज भी उसी सिम से आई थी, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि उसका रुख किस जानिब था। मैं सिर्फ धुएं की लकीर को झाड़ियों में जाते हुए देख सकता था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि गोली चलाने वाला उस वक्त तक फरार हो चुका होगा, लेकिन वो कहीं नहीं गया, बल्कि उसने खुद ही अपने दिल में गोली मार दी और पीछे को गिर पड़ा। उसके पास ही एक पुराना 3.0 का रिवॉल्वर सूखे पत्तों पर पड़ा हुआ था। उस आदमी और रिवॉल्वर के दरमियान सस्ती शराब की एक खाली बोतल भी नजर आई। जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले चंद लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और उनमें से एक बोला, ये कौन है? लेकिन कोई भी उसे ना पहचान सका। मैंने खुद भी पहले कभी उसे नहीं देखा था। मुझे पूरा यकीन था कि वो मर चुका है। फिर मैंने उसकी जेबों की तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इस मौसम में भी उसने काफी भारी कोट पहन रखा था। करीब ही उसका हेड पड़ा हुआ था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 50 और 60 के दरमियान थी। तुम में से कोई चर्च के किचन से ऑयल क्लॉथ ला सकता है ताकि हम उसे लाश पर डाल सके? मैंने कहा, खवातीन को बताने की जरूरत नहीं। इसके बाद मुझे उस वक्त तक वहाँ रुकना था जब तक जेम्स गार्लैंड होम का ताबूत जमीन पर न रख दिया जाता। फिर मैंने लाश को अपने ट्रक तक ले जाने के लिए ट्रॉली मुस्तार ले ली। मेरा ख्याल था कि उसे बूढ़े डॉक्टर मैकोनी के पास ले जाऊं। वो जंग के दौरान आर्मी सर्जन रह चुका था और अब भी रेलवे में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था। उसके पास ज्यादातर रेलवे के मुलाजिमीन या ऐसे मुसाफिर इलाज के लिए आते हैं जो रेल पर चढ़ने उतरने के दौरान जख्मी हो गए हों। वो कस्बे में रहने वालों की मामूली बीमारी का भी इलाज करता है। अलबत्ता संगीन नोयत की बीमारी के लिए काउंटी के अस्पताल जाना पड़ता था। डॉक्टर ने लाश का सरसरी मुआयना करने के बाद मुझे झंडी दिखा दी और कहा कि उसका तजहीज व तकफीन में शरीक होना जरूरी है और मुझे चाहिए कि लाश को बराह रास्त तजहीज व तकफीन का इंतजाम करने वाले जॉन मिल्टन पेनरोज के पास ले जाऊं। मुझे जान लेना चाहिए था कि वो भी मैकोनी की तरह यहाँ मौजूद होगा, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। वैसे भी ये लोग ऐसे मौके पर अपने आप को नुमाया नहीं करते। चुनांचा 1 घंटे बाद लाश समेत उसके दफ्तर पहुंच गया, जहां अकबी दरवाजे पर लटका हुआ बंद है का बोर्ड मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मैंने परेशानी के आलम में अपना हेड उतारा और सर खुजाने लगा। अचानक मेरी नजर मिस हेजलिन पॉक पर गई, जो साइकिल पर सवार अपने सफेद बुलडॉग गिम्बो के साथ आ रही थी। वो काउंटी नर्स थी और मैं गुज़िश्ता 1 बरस से उस पर फरीबता था। कभी कभी ऐसा महसूस होता था जैसे वो भी मुझ पर कुछ मेहरबान है। वो ज्यादातर जच्चा और ज़ईफ लोगों को देखती थी, लेकिन उसने 1 से ज़ायद मर्तबा संगीन नोयत के केसों में भी मदद की थी। मिस पॉक ने दस्ताने वाला हाथ हिलाया और करीब आकर मुझे हेलो कहा। उसने साइकिल रोकी और उसकी नजरें मेरे ट्रक के पिछले हिस्से पर जाकर ठहर गईं, जहां मक्खियां जमा होना शुरू हो गई थीं। उसने साइकिल पर बैठे बैठे वहां निगाह डाली और बोली, ये पीछे क्या रखा हुआ है? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैं चलता हुआ उसके पास गया और आहिस्ता से बोला, मुझे इसका रोशनी में मुआयना करने की जरूरत है। मुमकिन है कि मैं इसे रात भर के लिए सर्दखाने में रखवा दूं। पेनरोज अभी तक होम के जनाजे ही में है। उसने बंद है के बोर्ड पर निगाह डाली और अपनी साइकिल पोर्च की रेलिंग के साथ लगा दी। फिर उसने अपने हेट में से एक पिन निकाली और उसे दरवाजे में लगी लालटेन के पेंदे में डाला तो एक चाबी बाहर आ गई। मिस्टर पेनरोज ने मुझे जल्द खराब होने वाली दवाएं अपने रेफ्रिजरेटर में रखने की इजाजत दे रखी है। उसने दरवाजा खोलकर मुझे इशारा किया तो मैंने कहा, किसी को मत आने देना जब तक मैं अंदर हूँ। बात फैलते देर नहीं लगती, लेकिन मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था जब तक कि मुझे खुद मालूम ना हो जाए कि मामले की नोयत क्या है। मैं तेजी से वो लाश उठाकर अंदर ले गया और उसे एक मेज पर लेटा दिया। लाश अकड़ना शुरू हो गई थी। मैंने बड़ी एहतियात से ऑयल क्लॉथ हटाया। मिस पॉक मेरे पीछे खड़ी हुई थी, गो के वो मुदाखलत करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो सब कुछ गौर से देख रही है। मैंने उसे बताया कि जनाजे के मौके
पर क्या वाकया पेश आया और ये कि वहाँ मौजूद कोई भी शख्स उसे नहीं पहचानता। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या तुम इसके चेहरे पर एक नजर डालना चाहोगी? मुमकिन हो कि तुमने इसे कहीं देखा हो, मुमकिन हो कि ये कभी तुम्हारे पास इलाज की गर्ज से आया हो या सेनेटोरियम का कोई मरीज हो। उसने लाश को हर जाविये से देखा और पीछे हटते हुए नफी में सर हिला दिया। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने उससे कहा कि वो दूसरे कमरे में चली जाए, क्योंकि मैं लाश के कपड़े उतार कर उसके जख्म का मुआयना करना चाहता हूँ। तुम मेरे और इसके दरमियान में एक पर्दा डाल दो, इस तरह मैं कोई ऐसी चीज नहीं देख पाऊंगी जो मेरी बेहोशी की वजह बन सके। उसने तेज लहजे में कहा, तुम पर्दे की दूसरी जानिब से मुझे अपने मुशाहिदात बता सकते हो। तुम जो कुछ कहोगे मैं वो लिखती जाऊंगी, मुमकिन हो कि ये बाद में तुम्हारे काम आए। उसने अपने बैग से नोटबुक और पेंसिल निकाली और मैंने वो बराबर कर दिया। मैंने उसके लिबास के बारे में तफसील से बयान करना शुरू कर दिया। उसके सफेद सूट पर सामने की जानिब एक खून का दिब्बा था। उसके अलावा कोई निशान नजर नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसके जिस्म के निचले हिस्से पर कोई निशान या जख्म होगा जिससे इसकी शनाख्त में मदद मिल सके, और मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। एक ब्राउन रंग का पैदाइशी निशान उसकी बगल और कमर के दरमियान था जो सीधा उसकी नाफ तक चला गया था। मैंने उसकी पतलून ढीली करके थोड़ी सी नीचे खिसकाई तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मुझे ये कहते हुए शर्म महसूस हो रही है कि मेरी जुबान से एक ऐसा लफ्ज निकल गया जो मैंने जिंदगी में कभी किसी औरत के सामने अदा नहीं किया था। माफी चाहता हूँ मिस पोक, मैं भूल गया था। ओ मेरे खुदा, ये क्या है? वो चौंकते हुए बोली। मैंने उसके कदमों की आवाज अपनी जानिब आते सुनी तो ऑयल क्लॉथ से लाश का वो हिस्सा ढक दिया। क्या ये मुखन्नस है? उसने हकलाते हुए कहा। उसके साथ इससे भी बुरा हुआ है। ये पैदाइशी ऐसा नहीं था, इसे दानिस्ता तौर पर नामर्द बनाया गया है। उसने मुझे यूं देखा जैसे मैं पागल खाने से आया हूँ। फिर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो बोली, मुझे देखने दो। उसने अपने दस्ताने उतार कर कोहनियों तक लंबे रबर के दस्ताने चढ़ा लिए जो पेनरोज किसी लाश को हनूद करते वक्त पहना करता था। फिर वो मेरे पास से गुजरती हुई लाश तक गई और उस पर पड़ा हुआ ऑयल क्लॉथ हटाने लगी। मैं पर्दे की दूसरी जानिब चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आ गई और उसने अपनी नजरें दीवार पर जमा दी। क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि क्या सोच रही हो? ये ठीक है कि जख्म काफी पुराने हैं और एक ही वक्त में लगे हैं, लेकिन ये अमल 2 मरहलों में हुआ है। मैंने उससे वजाहत करने के लिए कहा तो वो बोली, नामर्द बनाने का काम किसी मामूली महारत रखने वाले ने अंजाम दिया था जिसके पास सिर्फ जानवरों को खसी करने का तजुर्बा था। मिस पोक, ये काम तो यहाँ के तकरीबन सभी किसान कर ही लेते हैं। ये सच है, लेकिन ये काम किसी हमला आवर ने किया है जो इसी मकसद से आया था और इसे कुछ जदोजहद भी करना पड़ी थी जिसकी वजह से सही काम ना हो सका। चंद घंटों बाद ही जख्म बिगड़ना शुरू हो गया जिसका इलाज एक तरबियत याफ्ता डॉक्टर ने किया। मैं नहीं समझती कि ये किसी की मदद के बगैर खुद डॉक्टर के पास गया होगा। क्या तुमने इसके सर की एक जानिब लगने वाले जख्म पर गौर किया? इस ज़रब से इसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, लेकिन इससे यकीनन वो हवास बाख्ता हो गया होगा। मुमकिन है कि हमला आवर ने इस पर काबू पाने के लिए ऐसा किया हो। वो गहरे सांस लेती हुई बोली, इसने खुदकुशी करके वक्त को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बहरहाल इसे 1 साल के अंदर मर जाना था। क्या तुमने इसके सूजे हुए पेट पर उभरी हुई रगे देखी? इसका जिगर खराब हो गया है। मैं इतनी देर लाश के पास ही रुका जब तक वो एडगर फोल्टन को लेकर नहीं आई। इस फोटोग्राफर का स्टूडियो ज्यादा दूर नहीं था। वो पहले भी पेनरोज के बुलाने पर कई मुर्दा लोगों की तस्वीरें खींच चुका था। यहाँ तक के गमजदा खानदानों ने भी मरने वालों के साथ यादगार के तौर पर तस्वीरें बनवाई। उसके आने से पहले पेनरोज भी पहुंच गया और उसने मरे हुए शख्स को मुनासिब शक्ल देने में मेरी मदद की। उसने जिस्म और चेहरे की सफाई करने के साथ साथ उस मुर्दा शख्स के बालों में कंघी की और उसकी गर्दन में एक कागज का टुकड़ा लगा दिया। मेरा ख्याल था कि उसकी तस्वीर अखबारात में देने के साथ साथ पोस्टर भी शाया किए जाएं और उन्हें रियासत में वाक़या तमाम शेरफ के दफातर और डाकखानों को भिजवाया जाए। फोल्टन ने तजवीज पेश की कि उसकी आंखों पर भी हल्की सी टचिंग कर दी जाए ताकि वो खुली हुई नजर आए। इन पोस्टर्स की अशाअत के काफी दिनों बाद कोई जवाब न आया तो मैं मायूस हो गया। उस मरने वाले की लाश काउंटी कब्रिस्तान के उस गोशे में रख दी गई जो लावारिसों के लिए मखसूस था। उस रोज मैं बक्स डोली के स्टोर के करीब से तजावजात हटवा रहा था कि मैंने एक वैगन के रुकने की आवाज सुनी जिसमें एक मजबूत डील डोल वाला मर्द, सुनहरे बालों वाली औरत और बहुत से बच्चे सवार थे। मर्द ने एक राहगीर से पूछा तो उसने मेरी जानिब इशारा कर दिया। वो मुझसे तकरीबन 10 फुट के फासले पर खड़े हुए थे। उस मर्द ने हैट उतार कर मेरी तरफ देखा और औरत को गाड़ी से उतरने में मदद दी। वो औरत सड़क पार करके मेरे पास
पास आई और बोली, यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ हम अकेले बात कर सकें? वो मजबूत जसामत वाली खूबसूरत औरत थी। उसकी उम्र 30 के लगभग होगी और उसके हाथ में उस पोस्टर की एक कॉपी थी। मेरा ख्याल है कि ये शख्स मेरा बाप है। गो के मैंने इसे 20 साल से नहीं देखा, लेकिन यकीन से कह सकती हूँ कि ये वही है। मैं उसे बाजार के अकब में एक कमरे में ले गया जिसे मैं अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करता था। मैंने ये पोस्टर सावेल के पोस्ट ऑफिस में देखा था। अब मेरा नाम जेनेट टैनर है, लेकिन पहले मैं फोरसाइट होती थी। मेरे बाप का नाम विलियम फोरसाइट था। जहाँ तक मुझे याद है उसे शराबनोशी की आदत थी और मैं हमेशा डरती थी कि उसकी मौत शायद किसी शर्मनाक तरीके से होगी। इस वक्त लाश काउंटी अस्पताल के मुर्दाखाने में थी जो वहाँ से 12 मील के फासले पर था, इसीलिए फौरी तौर पर उसकी शनाख्त नहीं हो सकती थी। लिहाजा मैंने तस्दीक के लिए उससे कुछ बातें पूछना जरूरी समझी। क्या उसके जिस्म पर कोई इम्तियाजी निशान या जख्म था जिसकी मदद से तुम उसे शनाख्त कर सको? वो शर्माई और ना हकलाई, जिससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो लाश के उस मखसूस जख्म के बारे में कुछ नहीं जानती। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि यहाँ एक पैदाइशी निशान था। उसने अपनी पसलियों की जानिब इशारा किया। उसका पेशा क्या था? वो एक सेल्समैन था और शहर शहर घूमकर मशीनों में डालने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तेल फरोख्त करता था। उसके ग्राहकों में ज्यादातर टेक्सटाइल और रेलवे कंपनियां शामिल थी। अपने काम के सिलसिले में वो बहुत ज्यादा सफर किया करता, जिसकी वजह से मुझे और मेरी माँ को उससे मिलने का बहुत कम मौका मिलता। फिर वो भी मर गई। उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? 12 साल। उसका इंतकाल नमूनिया से हुआ था। उस वक्त भी मेरा बाप वक्त पर नहीं पहुंच सका और एक बूढ़ी नानी के सिवा खानदान में मेरा कोई नहीं। मैंने इजहार हमदर्दी के तौर पर सर हिला दिया। वो सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोली, उसकी मौत ने कई लिहाज से मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। मेरे बाप की शराब नोशी बढ़ गई। नशे में वो बिल्कुल बदल जाता, लेकिन चूंकि घर में कोई और नहीं था इसीलिए उसने कारोबारी दौरों पर मुझे भी साथ ले जाना शुरू कर दिया। अगर मुझे किताबें पढ़ने की आदत ना होती तो उन होटलों में अकेले रहकर मर जाती जहां वो मुझे लेकर जाता था, क्योंकि दिन का बेशतर वक्त वो होटल से बाहर गुजारता था। वो दोबारा मुस्कुराई। मुझे ये टाउन बहुत पसंद था क्योंकि होटल की मालकन मुझे अपनी किताबें पढ़ने के लिए देती थी। इसी होटल में आखिरी बार मैंने अपने बाप को देखा था। ये कहकर वो खामोश हो गई। मैंने गला खंकार कर उसे दोबारा बोलने पर आमादा किया। हमें यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। अमूमन हम किसी जगह पर इतनी देर क़याम नहीं करते थे। फिर एक रात मेरा बाप वापस नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं और किससे बात करूं। मैंने खाना भी नहीं खाया और रात भर भूखी रही। दूसरे रोज सुबह सवेरे होटल की मालकन मेरे लिए नाश्ता लेकर आई और कहा कि मैं अपना सामान बांध लूं। उसने बताया कि मेरे बाप को एक खतरनाक हादसा पेश आ गया है और अस्पताल में दाखिल होने की वजह से वो कुछ अरसे तक मुझसे मिलने नहीं आ सकता। उसने बताया कि वो मुझे अपने किसी जानने वाले के घर ले जा रही है, जहां मैं उसी वक्त तक क़याम करूंगी जब तक मुझे नानी के पास पहुंचाने का बंदोबस्त नहीं किया जाता। मैं हैरान थी कि उसे मेरी नानी के बारे में कैसे मालूम हुआ। वो इस रियासत में नहीं रहती थी और न ही उसने कभी मेरी माँ या मुझ में कोई दिलचस्पी ली। अलबत्ता वो माँ के तदफीन के मौके पर थोड़ी देर के लिए आई जरूर थी। मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं थी, लेकिन मैंने उसके पास जाने के लिए अपना जहन बना लिया और कोई सवाल नहीं किया। होटल की मालकन और उसका एक सियाफाम मुलाजिम मुझे एक छोटे से साफ सुथरे मकान में ले गए जहां एक सियाफाम खानदान मेरा मुंतजिर था। 2 दिन बाद एक डिप्टी शेरिफ आया और मुझे गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान स्टेशन पर ले गया और मुझे ट्रेन पर सवार करा दिया गया। मैं ये समझने से कासिर थी कि उन्होंने मुझे होटल के करीब वाक़िया स्टेशन से ट्रेन में क्यों नहीं बिठाया। डिप्टी ने मुझे एक लिफाफा दिया जिसमें काफी डॉलर्स थे। एक दिन के सफर के बाद जब मैं अपनी मंजिल पर पहुंची तो नानी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं नहीं जानती कि उसके रवैये में अचानक तब्दीली कैसे आ गई। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई और वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, यही नहीं बल्कि जब जिम से मेरी शादी हुई तो उसने मुझे एक बड़ी रकम का चेक भी दिया जो मेरे ख्याल में उसकी हैसियत से बहुत ज्यादा था। हमने उस रकम से एक छोटा सा फार्म खरीद लिया। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि हालात तुम्हारे हक में बेहतर हो गए। तुम्हें उस डिप्टी शेरिफ का नाम याद है जिसने तुम्हें ट्रेन पर सवार करवाया था? बहुत अच्छी तरह। उसका नाम किट था जो उसके हेड पर लिखा हुआ था। वो जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैंने भी उसका साथ दिया। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाल कर उस पर अपना नाम पता लिखा और एक छोटे साइज की तस्वीर निकालते हुए बोली, ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाई थी। अगर तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसे मैं अब भी याद हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये समझने से कासिर था
تھا کہ وہ تصویر کس طرح کارآمد ہو سکتی ہے۔ وہ حال ہی میں لی گئی تھی اور اس میں وہ اپنے 5 بچوں کے ساتھ نظر آ رہی تھی، جس میں 3 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ میں تمہاری سوچ کی قدر کرتا ہوں، لیکن اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا اور تم ان 20 سالوں میں کافی بدل گئی ہو۔ میں جانتی ہوں کہ کوئی بھی مجھے نہیں پہچان پائے گا، لیکن میری نانی نے 1 سے زیادہ مرتبہ مجھے بتایا ہے کہ میری بڑی بیٹی مرسی بالکل مجھ پر گئی ہے۔ میں بھی بچپن میں ایسی ہی تھی۔ میں نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا، اس میں اپنی ماں کی بہت جھلک نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس عورت کو غور سے دیکھا اور پھر اس سے کہا، کیا یہ تصویر کچھ عرصے اپنے پاس عاریتاً رکھ سکتا ہوں؟ اگر کسی شخص نے اس کے ذریعے تمہیں پہچان لیا تو شاید وہ تمہارے باپ کی موت کے حوالے سے کچھ ایسی تفصیلات بتا سکیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ میں تمہیں یہ تصویر ڈاک کے ذریعے واپس بھجوا دوں گا۔ اوہ، تمہارا یہ کہہ دینا کافی ہے۔ وہ دروازے کی طرف جانے کے لیے مڑی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اس دوران تمہارا باپ کبھی یہاں واپس آیا؟ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی۔ اس کے بعد میں نے کبھی اسے نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے سامان کی تلاش میں آیا ہو یا وہ اپنے کیے کی تلافی کرنا چاہ رہا ہو۔ ایسی صورت میں اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں اسے بہت پہلے معاف کر چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ایک بات بڑی شدت سے محسوس ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے خودکشی کی ہے، کیونکہ میں پوسٹر میں یہ بات لکھ چکا تھا، لیکن اس نے مجھ سے اس کی تفصیل نہیں پوچھی اور نہ ہی تدفین کے اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کی۔ اس روز مس پوک کو کسی ذاتی کام سے جانا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے اپنے ٹرک میں لے چلوں تو اس کا کافی وقت بچ جائے گا۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ اس جیسی خوبصورت عورت میری ہمسفر بنے۔ میں نے راستے میں اسے مس ٹینر اور مردہ شخص کی شناخت کے بارے میں بتایا۔ جب میں نے اسے ہوٹل کے مالکن مسز بیسلے کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ اپنے ایک سیاہ فام ملازم کی مدد سے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی، تو اس نے اچانک ہی میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور بولی، میرے مریضوں میں سے ایک رولو نورس پورٹر ہوا کرتا تھا۔ بعد میں وہ کئی سال تک مسٹر ہوم کا ملازم رہا۔ یقیناً وہی پورٹر ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو۔ رولو نورس کاؤنٹی کے منظور شدہ مریضوں میں واحد سیاہ فام تھا جو باقاعدگی سے اپنا علاج کرواتے تھے۔ اس بارے میں کاؤنٹی کمشنر کا فلسفہ یہ تھا کہ سیاہ فام لوگوں کو اپنا علاج خود کروانا چاہیے، انہیں کاؤنٹی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس فہرست میں نورس کی موجودگی کی وجہ یہ تھی کہ جیمز گارلینڈ ہوم نے اس کی سفارش کی تھی۔ نورس ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ایک لڑکی ہمیں اندر لے گئی۔ مس پوک نے بتایا کہ وہ اس کی پوتی ہے۔ وہ ہمیں تکیوں اور کمبلوں کے ڈھیر کے پاس بٹھا کر چلی گئی۔ پھر اس میں سے آہستہ آہستہ ایک سفید سر نمودار ہوا، جیسے کوئی بوڑھا کچھوا اپنے خول سے باہر آ رہا ہو۔ اس نے سر جھکا کر مس پوک کو تعظیم دی۔ جب وہ اس کا حال چال پوچھ چکی تو میں نے جینٹ ٹینر کی تصویر اس کی طرف بڑھا دی، جسے اس نے لرزتے ہاتھوں سے پکڑ لیا اور آنکھوں سے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ میں اس بچی کو جانتا ہوں، یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے۔ اس نے مرسی ٹینر کی تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ جینٹ ٹینر بھی اس وقت مرسی جیسی ہی تھی۔ میں اس کی تصحیح کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مس پوک نے اشارے سے مجھے روک دیا اور بولی، وہ دردناک کہانی کیا ہے رولو؟ اس نے حیرت سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس وقت تم یہاں نہیں تھی، بلکہ شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، پھر بھی میں یہ کہانی سننا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اس کا کچھ حصہ عورتوں کے لیے قابل سماعت نہیں ہے، لیکن اس کا ناشائستہ قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا تھا۔ مس پوک نے اپنی نظریں جھکا لی اور ہمتن گوش ہو گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ بچی کچھ عرصہ ہمارے ہوٹل میں اپنے باپ کے ساتھ ٹہری۔ وہ ایک سیلز مین تھا اور اکثر یہاں آیا کرتا تھا، لیکن پہلے کبھی بیٹی کے ساتھ نہیں آیا۔ میں اس وقت پورٹر کے طور پر کام کرتا تھا اور لوگوں کا سامان ڈیپو سے ہوٹل لاتا اور لے جاتا تھا۔ میں نے کبھی ہوٹل میں آنے والے مہمانوں کی سرگرمیوں پر نظر نہیں رکھی۔ البتہ میری کزن میری اس ہوٹل میں خادمہ کے طور پر کام کرتی تھی اور صفائی کے لیے کمروں میں جاتی تھی۔ وہ وہاں قیام کرنے والوں اور ان کی حرکات و سکنات کو بھی نوٹ کرتی تھی۔ اس نے 3 شادیاں کی تھی، اسی لیے اسے ان باتوں سے کوئی حیرت نہیں ہوتی تھی۔ اس نے بتایا کہ سیلز مین اور اس کی بیٹی ایک ہی بستر پر سوتے ہیں۔ میرے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے میری سے کہا کہ شاید اس کی بیٹی کو ڈر لگتا ہو، کیونکہ یہ اس کے لیے اجنبی جگہ ہے اور حال ہی میں اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے۔ لیکن پھر اس نے اپنا چہرہ میری طرف کر لیا تاکہ مس پوک نہ سن سکے اور سرگوشی میں بولا، میری گندی چادریں لے کر آئی جو اس نے ان کے بستر سے اتاری تھی اور بولی، دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا۔ میں نے دیکھا کہ مس پوک کے ہونٹ بھینچ گئے۔ رولو کی تمام احتیاط کے باوجود اس نے گفتگو کا یہ حصہ سن لیا تھا۔ اس بارے میں تم دونوں نے کیا کیا؟ میری کبھی
बीबी कोई काम खुद नहीं करती थी, वो मसला कड़ा करके उसे दूसरों पर डाल देती है। मैं सारा दिन परेशान रहा, मुझसे खाना खाया गया और ना ही मैं सो सका। मैं किसी ऐसे शख्स को ये बात बताना चाह रहा था जो मुझसे ज्यादा बाइख्तियार हो। फिर तुमने किसे ये बात बताई? जाहिर है कि मिस्टर होम के अलावा और कौन हो सकता था? उसने मुझसे नजरें चुराते हुए कहा। मैं अंधेरा होने पर उनके यहाँ गया और उनके खानसामा से कहा कि वो उन्हें अकबी दरवाजे पर ले आए। ये बहुत अहम मामला है और मुझे उनसे अभी बात करनी है। मिस्टर होम जानते थे कि अगर खास बात ना होती तो मैं कभी रात के इस पहर उन्हें जहमत ना देता। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी। मैं देख सकता था कि उनकी मुट्ठियां भींच गईं और जबड़े सख्त हो गए, लेकिन उन्होंने इसके सिवा कुछ नहीं कहा कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं और ना ही किसी से कुछ कहने की जरूरत है, और अगर मेरी को होटल में मुलाजिमत करनी है तो उसे भी अपनी जुबान बंद रखनी होगी। फिर मिस्टर होम ने क्या किया मुझे ठीक से मालूम नहीं। अगले रोज सूरज निकलने से पहले होटल की मालकिन अपनी बग्गी में सवार होकर मेरे पास आई और उसने कहा कि मुझे उसके साथ होटल चलना होगा ताकि मैं लड़की को उसके सामान समेत उसके जानने वालों के घर पहुंचा दूं। मिसेस बीसले ने बताया कि लड़की के बाप को एक हादसा पेश आया है और उसे कुछ अरसा अस्पताल में रहना होगा, ताहम उसकी जान को कोई खतरा नहीं। नोरस ने बारी बारी हम दोनों को देखा और अपनी बात जारी रखते हुए बोला। इसके बाद मैंने उस बच्ची या उसके बाप के बारे में कुछ नहीं सुना और न ही किसी से पूछा, लेकिन कभी कभी अब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ। तुम्हें ये जानकर इत्मीनान होगा रोलो, मैंने कहा। मेरे पास ये यकीन करने की वजह मौजूद है कि वो छोटी लड़की अब एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है। उसका एक अपना खानदान है और वो कई लोगों से अच्छी जिंदगी बसर कर रही है। ये सुनकर रोलो मुस्कुरा दिया और एक बार फिर बिस्तर पर ढेर हो गया। उसका जहन किसी और जानिब चला गया था। उसके हाथ से तस्वीर निकलकर जमीन पर जा गिरी जिसे मैंने उठा लिया। उसकी बातें सुनने के बाद तो कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं रही। मिस पोक ने ट्रक में बैठते हुए कहा, खैर अब हमें उस मुर्दा शख्स की शनाख्त तो मिल गई और ये भी मालूम हो गया कि उसके साथ जो सलूक हुआ उसका मुमकिना मुहर्रिक क्या था। विलियम फॉस्टर को बेटी के साथ गैर फितरी ताल्लुक की सजा दी गई थी। यकीनन मिस्टर होम ने ही किसी शख्स को इस काम पर लगाया होगा। उसने कहा, मुमकिन है कि उसका मंशा ये ना हो कि उसे इतनी सख्त सजा दी जाए। जिसने भी ये काम किया उसने इंतहा कर दी। मैं भी यकीन नहीं कर सकती कि जेम्स गारलैंड होम ने ये काम खुद किया होगा। मैं ये सोचकर खुश हो रहा था कि होम इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, वरना मुझे यकीन है कि उससे इन इल्जामात के बारे में कुछ पूछ सकता। अलबत्ता मिस पोक किसी और खतूत पर सोच रही थी। उसने कहा, होम ने यकीनी तौर पर फोस्टर के लिए तिब्बी इमदाद का बंदोबस्त किया होगा। इससे जाहिर होता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता था। क्या ऐसा नहीं है? वो ठीक ही कह रही थी। होम को किसी ऐसे शख्स की जरूरत महसूस हुई होगी जो फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मुहैया कर सके। उस वक्त भी आज की तरह कस्बे में एक ही शख्स मतलूबा महारत का हामिल था, यानी साइरस मैकोनी। मैं बुरी तरह थक चुका था, लेकिन डॉक्टर से मिले बगैर मुझे नींद न आती। चुनांचा मिस पोक को उसके ठिकाने पर छोड़कर मैं उस डॉक्टर की तरफ रवाना हो गया। मैं उसे इस गुफ्तगू में शामिल नहीं करना चाहता था क्योंकि वो उसकी बहुत इज्जत करती थी और डॉक्टर भी उसे पसंद करता था। लिहाजा मिस पोक की मौजूदगी में डॉक्टर से खुलकर गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। वो अपने क्लिनिक से निकल ही रहा था कि मैं पहुंच गया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि कोई बात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही है और जब तक उसकी वजाहत ना हो जाए मुझे चैन नहीं आएगा, तो उसने मुझे अंदर बुला लिया। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि उसकी उम्र 70 से तजावज कर चुकी है, लेकिन वो अब भी पहले की तरह चाको चौबंद था। ये ऐसा मौका नहीं था कि मैं उससे घुमा फिरा कर सवालात करके कुछ मालूम करने की कोशिश करता। जो कुछ रोलो नोरस ने कहा था वो मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि फोस्टर की बेटी ने किस तरह पैदाइशी निशान की मदद से अपने बाप की लाश को शनाख्त किया। मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है कि मरने वाला वही शख्स है जिसका मैंने इलाज किया था, और इस पर भी हैरान हूँ कि तुम मुझसे उसकी मौत का सर्टिफिकेट लेने को क्यों नहीं आए। फिर मैं अपने आप को लानत मलामत करता कि इसका तस्वर मेरे जहन से कैसे निकल गया। ये कहकर वो बड़ी मुश्किल से अपनी कुर्सी से उठा और बमुश्किल तमाम चलता हुआ कद आदम अलमारियों तक पहुंचा। वो एक सीढ़ी खींचने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसे रोक दिया और पेशकश की कि उसे जिस चीज की तलाश है वो मैं निकाल देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। दरअसल उन दिनों मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा है। बाई जानिब सबसे ऊपर वाली दराज में एक लिफाफा रखा हुआ है। उसने मुझे अपनी घड़ी की चेन में से एक चाबी निकाल कर देते हुए कहा, मैंने कई सालों से वो दराज खोलकर नहीं देखी। अगर चूहों और घुन से महफूज रह गया हो तो उस लिफाफे को वहीं होना चाहिए। वो लिफाफा अपनी जगह मौजूद था, अलबत्ता फोस्टर के मुर्दा चेहरे की तरह। वो जर्द दाग
दागों से भरा हुआ लग रहा था। चूहों ने उसके कोने कुतर दिए थे, लेकिन बाकी लिफाफा महफूज था। जब मैंने वो लिफाफा डॉक्टर को देना चाहा तो वो हाथ हिलाते हुए बोला, तुम इसे पढ़ो, मुमकिन है कि इसकी हैंड राइटिंग भी पहचान लो। मेरे लिए वो तहरीर अजनबी थी, लेकिन लफ्ज इस तरह कागज पर घसीटे गए थे जैसे किसी ने हिजानी कैफियत में उन्हें लिखा हो। उस शख्स का बेहतरीन तरीके से इलाज करो। डिप्टी किट को ये इसी हालत में काउंटी रोड पर पड़ा हुआ मिला है। लगता है कि इसे कोई गाड़ी टक्कर मार कर मरने के लिए छोड़कर चली गई है। ये बात सिर्फ तुम तक ही रहनी चाहिए। जब ये सफर के काबिल हो जाए तो मैं एक लड़के को तुम्हारे पास भेजूंगा। मेरा ख्याल है कि ये आसानी से सफर कर सकेगा। अगर इसे कोई सुकून पहुंचाने वाली दवा दे दी जाए, तुम्हारी जो भी फीस हो वो किट को बता देना, उसकी अदायगी हो जाएगी। मैकोनी नाक सुखेड़ते हुए बोला, ये खत होम ने लिखा था, मुझे इस बारे में कोई शुबा नहीं है, इसीलिए मैंने कुदरती तौर पर किट या किसी और शख्स से फीस का मुतालिबा नहीं किया। क्या तुम्हें कोई शुबा हुआ था? बिल्कुल हुआ था। मैं जानता था कि वो शख्स किसी हादसे में जख्मी नहीं हुआ। किट उस शख्स को इस खत समेत निसब शब के करीब लेकर आया और फौरन ही वापस चला गया। उसने मुझे इतना मौका भी ना दिया कि कुछ पूछ सकूं। वो खुद किसी नीम पागल शख्स की तरह वहशतज़दा लग रहा था, जिस पर मुझे बहुत हैरानी हुई और मेरी समझ में नहीं आया कि वो इतना खौफजदा क्यों है। लेकिन मुझे इस खत में लिखी हुई हिदायत पर अमल करना था। फिर तुमने उस खत को मुकफ़ल कर दिया, क्यों? अगर वो शख्स दौरान इलाज मर जाता तो कम से कम मेरे पास एक सबूत होना चाहिए कि उसे जिस हालत में मेरे पास लाया गया उसका जिम्मेदार मैं नहीं था। मैंने उसे दर्द दूर करने वाली दवाएं दी, उसके जख्मों का इलाज किया। इस दौरान वो एक मर्तबा भी पूरी तरह होश में नहीं आया और न ही उसने मुझे देखा। मैंने बुखार का बहाना बनाकर अपना क्लिनिक बंद कर दिया और 24 घंटे उसके पास भी रहा। फिर एक सियाफाम उसे लेने आया जिसे मैं नहीं जानता था और उसे एक वैगन में सवार करके ले गया जिसमें तमाम सहूलतें मौजूद थी। मैं पुरएतमाद था कि वो बच जाएगा। उसके चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, बशर्ते कि उसे कोई गाड़ी टक्कर ना मार दे। दूसरे रोज मैं किट से मिलने उसके घर पहुंच गया। दरवाजा उसी ने खोला। गालिबन उसने अंदाजा लगा लिया कि मैं किसी खास मकसद के तहत उससे मिलने आया हूँ। उसने मुंह बनाते हुए कहा कि मैंने आने से पहले उसे टेलीफोन क्यों नहीं किया। मैंने कंधे उचका दिए। उसकी बीवी ने कॉफी की पेशकश की जिसे मैंने मुस्तरद कर दिया। जब वो घर के अकबी हिस्से में चली गई तो मैंने किट से कहा कि इससे चंद बातें पूछने आया हूँ। तुम डिप्टी बनने से पहले एक किसान के यहाँ काम करते थे। वो थोड़ा सा पुरसुकून होते हुए बोला, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो, मुझे वो जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। रुए जमीन पर सूअर सबसे गंदा जानवर है। क्या तुमने कभी किसी सूअर को जिनसी तौर पर नाकारा किया? वो नजरें चुराते हुए बोला, मुमकिन हो कि किया हो, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था। कभी किसी इंसान को? मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया और उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। वो अपने कदमों पर उछलते हुए बोला, तुम्हारा इशारा किस जानिब है? मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिसने होम की तदफीन के मौके पर जंगल में खुदकुशी कर ली थी। मेरा उस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। ये मत कहो। डॉक्टर मैकोनी ने मुझे एक मुख्तलिफ कहानी सुनाई है। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। वैसे भी मैकोनी इस बुढ़ापे में सटिया गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी चलकर उससे बात करो ताकि मामला वाज़ेह हो सके। वो एक कदम पीछे हटता हुआ बोला, होम ने मुझे इस काम के लिए आमादा किया था। उस मनहूस के मुझ पर कई एहसानात थे और मैं भी कस्बे के दूसरे लोगों की तरह उसे इनकार नहीं कर सकता था। वो बेहिस हरकत खड़ा हुआ था। लेकिन अगर तुमने किसी के सामने कभी ये बात कही तो मैं मुकर जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा ही करोगे। लेकिन डॉक्टर मैकोनी तुम्हारा साथ नहीं देगा और कस्बे के लोग तुम्हारे मुकाबले में इस पर ज्यादा भरोसे कर सकते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि डॉक्टर उस खत पर इन्हिसार कर रहा है जो तुम उस रात लेकर उसके पास आए थे। मुमकिन है कि वो ये खत जाहिर कर दे। किड ने मुझे यूं देखा जैसे मैंने उसके चेहरे के सामने कोई खतरनाक सांप लहरा दिया हो। हमारा शहर अब सर से पांव तक पसीने में शराबूर हो चुका था। तुम क्या चाहते हो स्टोकी? पैसे? तुम जानते हो कि मेरी क्या कमाई है। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उस पेंशन का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं जिसके तुम चंद माह बाद हकदार हो जाओगे। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सेहत पर तवज्जो दो। ओह, क्या तुम मुझे जिस्मानी नुकसान पहुँचाने की धमकी दे रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम अपनी खराब सेहत के बारे में फैसला करो। जो तुम्हारे
تمہارے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ قصبے کی بہتری اسی میں ہے کہ تم دوبارہ شیرف کے انتخاب میں حصہ نہ لو۔ اس نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، پھر مجھے کس بات کا اعتراف نہیں کرنا ہوگا؟ بالکل نہیں، اور میں بھی اس بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالوں گا، اور ڈاکٹر کی طرف سے بھی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ خاموش رہے گا، بشرطے کہ تم میرے کہنے پر عمل کرو۔ اگر میرا ذہن تبدیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں اس امکان پر پہلے ہی غور کر چکا تھا۔ میں نے کہا، ایسی صورت میں ہم اپنی زبان بند نہیں رکھ سکیں گے، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ تم دوبارہ منتخب نہیں ہو سکو گے، بلکہ تمہیں پینشن سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائیں گے۔ ووٹرز کبھی تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے کہ تم نے ہوم کے کہنے پر قبیح فعل سر انجام دیا تھا جبکہ وہ مر چکا ہے اور اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ میں نے سنا ہے کہ اس خدمت کے عوض اس نے تمہاری لائبریری اور مفت کلینک کے لیے بھاری رقم دی تھی۔ وہاں سے روانہ ہوتے وقت مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ میرے اور کٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فوسٹر قصبے میں واپس کیوں آیا تھا۔ میرے خیال میں وہ کسی اور مقصد سے نہیں بلکہ بدلہ لینے کی غرض سے آیا تھا، اور اسے اپنے اندر ہمت پیدا کرنے میں 20 سال لگ گئے، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہوم کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر بھی اس نے تابوت پر گولی چلا دی۔ بدلہ نہ لینے سے بہتر تھا کہ وہ اپنا غصہ اس طرح اتارے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سال 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے کہ لوگ پکڑ کر اس کی تکہ بوٹی ایک کر دیتے، اس نے اپنے آپ کو بھی گولی مار لی۔ البتہ یہ بات سمجھ سے بالاتر تھی کہ فوسٹر نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا کہ اس کے پیچھے ہوم کا ہاتھ تھا، جب تک کہ کڈ نے اسے نہ بتایا، اور یہ بعید از قیاس نہیں تھا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ کڈ کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا ہوگا، اور اس نے روتے روتے سارا الزام کسی اور کے سر ڈال دیا ہوگا۔ شاید اس نے براہ راست فوسٹر سے نہ کہا ہو اور کسی دوسرے ذریعے سے یہ بات اس تک پہنچا دی ہو۔ وہ ہفتہ میرے لیے بہت خوشگوار ثابت ہوا۔ میں مس پوک سے ملنے گیا تو وہ اپنے ٹٹو کو لے کر استبل سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے چہکتے ہوئے مجھے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے چکن سینڈوچ کی پیشکش کی، جسے میں نے فوراً قبول کر لیا۔ آدھا گھنٹے بعد میں نزدیکی کیفے میں اس خوبصورت عورت کے ساتھ بیٹھا چکن سینڈوچ کھا رہا تھا جس پر میں عرصہ دراز سے فریفتہ تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اس سے بے نیازی برتی ہو، اور اس کا رویہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میں نے تصور کی آنکھ سے آئندہ چند مہینوں میں اپنے آپ کو شیرف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اگر قسمت نے یاوری کی اور میں مس ہیزلین پوک کو ترغیب دینے میں کامیاب ہو گیا تو منتخب نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ پر شادی شدہ ہونے کا لیبل بھی لگ جائے گا، اور یہ میرے لیے دوہری خوشی ہوگی۔ ختم شد۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ شکریہ۔